So yes. So good morning, friends. Welcome again for this class of microprocessor, in which we are trying to revise the terms that we have revised the data that we have already studied. So we have started with this introduction of microprocessor, and then we are expected to cover these topics. We have covered almost some of the topics in over here, which was the basic of microprocessor introduction, जिसमें हमने बताया कि माइक्रो प्रोसेसर ये एक सीपीयू जैसा काम करता है और ये एक सिंगल चिप है जिसमें अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स ये सब अंदर इनबिल्ट है। ये एक 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है और इसको ऑपरेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज अराउंड 3 मेगाहर्ट्ज। इसको +5 वोल्ट पावर सप्लाई लगता है रेगुलेटेड। ये एक सिंगल चिप पर बनाया हुआ है जिसपे एनमॉस टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, जिसपे अराउंड 6200 ट्रांजिस्टर्स इंटीग्रेट किए हुए हैं। इसके जो एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस है 74 है, पर उसको हम लोग अगर इलेबोरेट करें तो दैट इज अराउंड 206। सो ये हम लोगों ने पढ़ा था। पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने बताया था कि 6 ग्रुप में हमने उसको डिवाइड किया है, that is data bus, address bus, control and status line. Then we have studied like externally generated signals, then a serial interface, power supply and clock. So these were there. Then we have started with this was some of the basic, that is address bus, which is supposed to be from AD0 to AD15, A15. That is, we are having two divisions, AD0 to AD7 and A8 to A15. So A8 to A15 is the higher order address bus, and AD0 to AD7 is a multiplex data and address bus. Address bus is a lower order higher bus. तो ये हम लोगों ने उसको पढ़ा था। फिर इसके बाद डेटा बस के बारे में मैंने बताया था कि दिस डेटा बस इज इंक्लूडिंग 8 data lines which are being multiplexed by the lower order address bus as well, and they are sometimes being used for data also. So this is what we have studied earlier. Then this was the pin configuration, जिसमें read है, write है, they are active low, input output, memory bar है, status lines है, S1 and S0 ये पढ़ चुके हैं। Special signals which are generated by the microprocessor are address latch enabled, जिसकी IC है 74373, or sometimes it is used as 8212. Then this is actually used to latch the address and data bus which we are multiplexing. So ये एक है। और address latch enable if it is 1, then external latch IC is enabled, otherwise when it is 0 it is disabled, right? So it is over there. So if 1 is there, then the bus is going to use as an address, and if it is 0, then it is going to use as a data line. So ये याद रखना, हम लोग टाइमिंग डायग्राम में इसको यूज करने वाले हैं कि वो एड्रेस लैच एनेबल जो है वो 1 कब रहता है और 0 कब होता है, और उसके हिसाब से हम लोग एड्रेस और डेटा को कैसे यूज करते हैं, राइट? सो दिस इज ओवर देयर, ये पढ़ा है। फिर हम लोगों ने ये पिन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, वोंट गो इन डेप्थ इन दिस। इसमें एक हायर ऑर्डर एड्रेस बस है, डेटा लाइन है, फिर इंटरप्ट्स है, क्लॉक सिग्नल के लिए X1 X2 है, पावर सप्लाई है, रेडी है, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज है, इंटरप्ट एक्नॉलेज है, रिसेट आउट, क्लॉक आउट, और इधर हमारे सिग्नल्स है रीड, राइट, इनपुट आउटपुट, मेमोरी बार, स्टेटस लाइंस, S0 S1, एड्रेस लैच एनेबल, ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद फिर है हमारा ये एक्चुअल पिन कॉन्फ़िगरेशन है। तो X1 X2 से स्टार्ट होता है, रीसेट आउट, फिर सोड, सीरियल आउटपुट डेटा, सीरियल इनपुट डेटा, फिर हमारे ट्रैप है 5, इंटरप्ट एक्नॉलेज है, सॉरी इंटरप्ट है 5, और उसके बाद इंटरप्ट एक्नॉलेज है। सो ये है, तो ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, 5.5 and interrupt, these are 5 interrupts, and after that we are having interrupt acknowledge. AD0 to AD7 ये 8 bit एड्रेस एंड डेटा मल्टीप्लेक्स लाइन्स है, बस है। फिर है ग्राउंड, 20th पिन हमेशा लास्ट पिन जो भी होता है दैट इज ग्राउंड, and the 40th pin is plus VCC. Then we are having hold and hold acknowledge. This is actually to access the memory directly. Then we have clock out, reset in bar, ready, input output, memory bar, S1, read, write,
address latch enable and SO. After that we are having these 8 wires, that is for higher order address bus that starts from A8 to A15. So ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं. इसके बाद हम लोगों ने एड्रेस लैच एनेबल के बारे में पढ़ा था कि हाउ इट इज यूज्ड to latch the data and address line. So this is that IC 7431. So this IC is going to latch this address. So when this address latch enable, ये जो black color की thick line दिख रही है, this is going to control, this is going to control the address latch enable IC. So अगर ये 1 है तो हमारा एड्रेस जो है ये एड्रेस एनेबल हो जाता है. अगर ये एड्रेस लैच एनेबल 0 है तो ये आईसी डिसेबल हो जाती है और ये एड्रेस डेटा जैसा बस यूज करते हैं. So same wires are being used, they are being multiplexed. So this is for demultiplexing of address and data bus. ये था. फिर then we have started with architecture of microprocessor 8085 and this was the basic of architecture that we have studied. I hope you have got, but I will again repeat it for you. So if you are able to see, these are some green lines. ये green जितने भी दिख रहे हैं, this is data bus. This is internal data bus. मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि IC के अंदर कितने सारे ब्लॉक्स हैं. वो IC के अंदर के ब्लॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी. और इसमें मैंने कहा कि ये जो जितना भी ग्रीन कलर का दिख रहा है, दिस इज 8-bit डेटा बस, यानी डेटा जो लेकर जाना है एक जगह से दूसरे जगह तक इंटरनली इन द माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ. ये ग्रीन कलर का 8 बिट का वायर, 8 बिट का बस यूज कर सकते हैं. सो दैट इज ओवर देयर. Then we are having a register array in which we are having B, C, D, E and HL. These are 8-bit general purpose registers which can be used for temporary storage of data. So that is over there. They can also be used in pairs. So 16-bit का data जब कभी भी हमको process करना है तो हम लोग B, C, D, HL ये default register pair से उनको हम लोग use कर सकते हैं. इसमें HL pair जो है, इस HL पेयर को हमेशा हम लोग मेमोरी से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करेंगे. अगर आपको उसको मेमोरी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन नहीं यूज करनी है तो भी आप उनको जनरल पर्पस रजिस्टर जैसा यूज कर सकते हो, ये याद रखना. सो H कैन बी यूज्ड, तो ऐड H भी कर सकते हो, ऐड L भी कर सकते हो. दे कैन बी यूज्ड एज अ सेपरेट जनरल पर्पस रजिस्टर आल्सो, बट बाय डिफॉल्ट हम लोग उसको कभी कभी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर करने के लिए भी यूज करते हैं. और उसके साथ साथ जो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है उसमें हम लोग ये मानते हैं कि उसका एड्रेस जो है वो हमारे HL में स्टोर है, राइट. तो these are specifically used for to store the memory location where our data is being stored, right. तो ये है. फिर उसके बाद स्टैक पॉइंटर है, प्रोग्राम काउंटर है, इसके बारे में हम लोग अभी नीचे पढ़ने वाले हैं इन डेप्थ. फिर इसके बाद है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर which is going to decode the opcode of that ऑपकोड ऑफ जो हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देने वाले हैं वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में सबसे पहले आता है. फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड मशीन कोड एनकोडिंग, तो उसके वजह से फिर वो डिकोड होता है कि ऑपरेशंस क्या क्या करने हैं और उसके वजह से सिग्नल हमारा टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट ये सिग्नल जनरेट करता है. इसके बाद है ALU अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट. और वो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट क्या काम करता है? अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ये यूनिट काम करता है. दिस इज एक्चुअली अ 8-बिट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट प्रोसेसर, यानी 8 बिट का डेटा हम लोग इसमें प्रोसेस कर सकते हैं. सो एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर और है जिसको हम लोग स्पेशल पर्पस रजिस्टर बोलते हैं, जिसमें हर प्रकार का डेटा हम लोग पहले स्टोर करते हैं. जो भी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हमको करने हैं उसके लिए एक डेटा जो है वो हमारा अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट में होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सो दैट इज द रजिस्टर एक्यूमुलेटर. और बाद में एक टेम्पररी रजिस्टर है. अगर हमारे को 2 8-बिट का डेटा इसमें ऐड करना है या कोई अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हमको एग्जीक्यूट करना है तो 2 डेटा में से एक डेटा टेम्पररी रजिस्टर में रहेगा विच इज से ट्रांसफर्ड फ्रॉम से रजिस्टर B, रजिस्टर C, D. तो ऐसा हम लोग उसको कर सकते हैं. और उसके बाद ये एक एक्यूमुलेटर है. ये कौन कर रहा है वहां पर, वो थोड़ा सा मिटा दो बेटा, किसने किया है उसको. तो ये एक है. फिर उसके बाद है हमारा टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट. इसके बारे में हम नीचे वाले डायग्राम में पढ़ेंगे. ऊपर वाला है इंटरप्ट कंट्रोल. जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरप्ट 5 प्रकार के होते हैं.
ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 और इंटरप्ट, ऐसे 5 इंटरप्ट्स है। और यहाँ पर होता है इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये जो आप देख रहे हो ये गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये अंदर नहीं आता, ये माइक्रो प्रोसेसर उस इंटरप्ट डिवाइस को देता है जो इंटरप्ट कर रहा है। तो वो इंटरप्ट एक्नॉलेज माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू जाता है, तो वो उल्टा दिखाया है। उसके बाद है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, यानी सीरियली डेटा अगर इनपुट करना है या सीरियली अगर डेटा हमको आउटपुट करना है तो हम लोग ये वाले सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल से काम करते हैं। नीचे है स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर मैंने कहा टेम्पररी, अगर हमको डेटा स्टोर करना है कुछ देर के लिए, अगर सभी रजिस्टर्स बिजी है तो हम लोग स्टैक पॉइंटर पर स्टोर कर सकते हैं। प्रोग्राम काउंटर कीप्स द ट्रैक, वो मेमोरी लोकेशन का ट्रैक रखता है जहां पर हमारा नेक्स्ट ऑपकोड या इंस्ट्रक्शन रखा हुआ है, तो प्रोग्राम काउंटर विल टेक केयर ऑफ दैट। ये एड्रेस बफर और एड्रेस डेटा बफर, ये एक बफर्स लगाए हुए हैं सो दैट इट कैन बी यूज्ड। फिर इसके बाद का हमारा ये वाला डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ डायग्राम विच वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू ड्रॉ इन योर एग्जाम्स। सो अगर आप नीचे देखो टाइमिंग और कंट्रोल यूनिट का जो ब्रेन है माइक्रो प्रोसेसर का, इसमें से कितने सारे सिग्नल्स हमारे दे रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले X1 और X2 है विच आर कनेक्टेड टू द क्रिस्टल। फिर इसके बाद है हमारा क्लॉक आउट, फिर उसके बाद है रेडी सिग्नल। रेडी सिग्नल इज गिवन बाय द डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देन we are having read bar, write bar, ALE address latch enable, S0, S1, input output memory bar, hold and hold acknowledge। होल्ड जो है ये मेमोरी देने वाला है उसको, कि वो जो भी काम कर रहा है माइक्रो प्रोसेसर उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, क्योंकि मेमोरी को हमारा माइक्रो प्रोसेसर यूज करना चाहता है। फिर जब ये सिग्नल हमारा माइक्रो प्रोसेसर डिटेक्ट करेगा तो इट विल सेंड द मेमोरी दैट होल्ड एक्नॉलेज, यानी माइक्रो प्रोसेसर ने होल्ड का सिग्नल एक्नॉलेज किया है। इसके बाद है रीसेट इन और रीसेट आउट। ये हमारे रीसेट टर्मिनल्स है। ये रीसेट आउट जो है बाकी डिवाइसेस को रीसेट करने के लिए, रीसेट इन ये जो है वो हमारा माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करने के लिए, राइट। अगर अभी इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हो, हम लोग इसको फिर भी देख लेंगे एक बार। नीचे ये है आर्किटेक्चर, इसमें ये हमारे ब्लॉक्स है, ALU है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड है, फ्लैग्स मैंने बताया नहीं शायद, फ्लैग्स है इसमें। तो फ्लैग्स वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर ALU के जस्ट ऊपर है। इसमें अगेन 8 बिट के रजिस्टर्स है, हम लोग उसको पढ़ेंगे। उसमें सिर्फ 5 फ्लैग्स है जो हम लोग अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। सो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। फिर है प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, इंटरप्ट कंट्रोल, सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, एड्रेस बस एंड डेटा बस, ये सब है उसमें। फिर उसके बाद है प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ 8085। इसमें हम लोग BCDE और HL को कैसे यूज करते हैं, डेटा और एड्रेस लाइंस को कैसे यूज करते हैं, ये बताया है। इसके बाद है जो डिस्क्रिप्शन है हमारा आर्किटेक्चर का वो शुरू हो रहा है। इसमें सबसे पहले एक्यूमुलेटर के बारे में बताया है। दिस इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर। All the ALU operations are performed with reference to the contents of accumulator। मतलब ये कि one of the content 8-bit content should be in the accumulator first। तो एक डेटा this data is always stored in the accumulator first and the other data is stored in say some registers or in the memory location accordingly। फिर है BCDE और HL, जनरल पर्पस रजिस्टर्स है। ये रजिस्टर्स हम लोग यूज कर सकते हैं, इनको 16 बिट के लिए यूज करने के लिए हमको पेयर में यूज करना है, BCDE और HL पेयर्स। तो ये भी है उसमें। फिर इसके बाद ये डिफॉल्ट पेयर्स है। फिर उसके बाद है फ्लैग रजिस्टर, ये बताने वाला था मैं, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। तो हमारे पास ये फ्लैग रजिस्टर्स है जो फिर अगेन 8 बिट का है, जिसमें हम लोग यूज करते हैं D7 दैट इज साइन फ्लैग। साइन फ्लैग बोला तो ये नंबर जो दिया हुआ है, जो नंबर आया है रिजल्ट में, ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये डिटरमाइन करने का काम करता है D7 वाला बिट, दैट इज एक्चुअली अ साइन फ्लैग। उसके बाद है D6। D6 इज फॉर द जीरो फ्लैग। जीरो फ्लैग बोला तो क्या होगा, जीरो मतलब जो रिजल्ट आया है वो अगर जीरो है उसका तो ये जीरो फ्लैग सेट होगा, अदरवाइज इट इज रीसेट। फिर D5 जो है वो यूज नहीं करते हैं हम लोग। D4 वाला है ऑक्सिलरी कैरी। इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 बिट का निबल होता है, 8 बिट का क्या होता है, बाइट होता है।
तो ये 4 बिट और जो दूसरा 4 बिट है, इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद अगर कैरी जनरेट होता है, नीबल में से कैरी अगर जनरेट होता है, तो ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग सेट होता है। मैं नीबल की बात कर रहा हूं। तो नीबल इज अ 4 बिट। तो पहले 4 बिट और दूसरे 4 बिट, इन 4 बिट का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के वजह से अगर कैरी जनरेट होता है, then this auxiliary carry is affected, that is it is 1 or otherwise it remains 0। फिर है हमारा पैरिटी। पैरिटी बोला तो कितने नंबर ऑफ वंस है एक कोड में, एक रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ वंस है। मान के चलो यहाँ पर एक रिजल्ट जो आया है वो है 1 1 1 0 0 0, यानी 4 बिट 1 है और 4 बिट 0 है, जिसका आउटपुट अगर मैं हेक्साडेसिमल में पढ़ूं तो वो होता है F0, राइट। तो F0 में हमारे जो 8 बिट का डेटा है, इसमें 4 बिट जो है 1 है, सो द पैरिटी इज इवन। और अगर मान लो F1 हो जाता है तो 1 1 1 0 0 1, अब कितने वंस है इसमें, इसमें 5 वंस आ गए, मतलब द पैरिटी इज ऑड। सो इफ देयर इज अ इवन पैरिटी, द रिजल्ट हैज इवन पैरिटी, implies that the parity should be even, that is 1। if the parity is odd, मतलब the number of ones is 5, odd numbers है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, there is a odd parity and the parity flag will reset again, so that is 0। and this D0 flag is कैरी फ्लैग। कैरी फ्लैग मतलब अगर हमारा 8 बिट के रिजल्ट का आउटपुट में कैरी आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कैरी फ्लैग सेट होता है, अदरवाइज इट इज रीसेट, मतलब 0 रहेगा। ये हम लोग कब बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं रिजल्ट आने के बाद की, यानी हमने कोई डेटा ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो उसके बाद जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या चेंजेस होंगे, उसके हिसाब से ये फ्लैग के स्टेटस हमारे काम करने वाले। अब याद रखो कि ये जो स्टेटस फ्लैग है, इनके हिसाब से भी हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है, इसीलिए हम ये फ्लैग्स का इंपॉर्टेंस मानते हैं। जैसे जंप इफ कैरी, यानी अगर कैरी जनरेट हुआ है तो जंप करो। जंप इफ 0, मतलब अगर ये पूरा रिजल्ट 0 हुआ है तो जंप करो। जंप इफ नॉट कैरी, जंप इफ पैरिटी लो, जंप इफ नेगेटिव इवन पैरिटी, जंप इफ ऑड पैरिटी, ये सब जो है, जंप इफ साइन माइनस और नेगेटिव, तो ये जो है, ये सब इंस्ट्रक्शंस जो है ये इन फ्लैग्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हमारे को फ्लैग का स्टेटस भी पता होना चाहिए। याद रखिए, फ्लैग का स्टेटस पता होना बहुत बहुत जरूरी है, बिलीव मी। सो दिस इज ओवर देयर। So these are flags. So these are only 5 flags as I told you: साइन, 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी और कैरी, ये फ्लैग्स है। और इसमें D5, D3 और D1 ये जो ये रजिस्टर्स है, ये हम लोग यूज नहीं कर रहे, सिर्फ 5 ही रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं। फिर प्रोग्राम काउंटर के बारे में, प्रोग्राम काउंटर कीप्स द ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन जहां हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है। तो ये है। फिर स्टैक पॉइंटर है, मैंने बताया स्टैक पॉइंटर को हम लोग क्या के लिए यूज करते हैं, टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद टेम्परेरी रजिस्टर है W एंड Z, ये 3 रजिस्टर है जो यूजर प्रोग्रामर यूज नहीं कर सकता। दीज आर ओवर देयर। फिर अदर ब्लॉक्स आर अरिथमेटिक और लॉजिकल यूनिट, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन और मशीन साइकिल एनकोडर यूनिट, ये है। फिर हमारा है ओवरऑल, ये हमने फिर बाद में स्टार्ट किया था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर किट कैसे दिखता है। तो मैं अभी पूछ रहा हूं कि अगर आपको इसमें कोई अभी दिक्कत है तो मुझे अभी अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हो। मैं शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूं, आप बताइए मुझे। वेरी गुड, अटेंडेंस तो बहुत अच्छी है आज, 19 था शायद। बोलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है, लेट मी नो। क्या कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम्स के वक्त एक्चुअली समझ में आता है कि रजिस्टर्स कहाँ यूज कर रहे हैं। मैंने कहा MVI A03, तो मतलब अभी रजिस्टर A में 03 जो है वो अपलोड होगा, ये समझो। तो ये कहाँ जाएगा, ये माइक्रो प्रोसेसर के किट के अंदर जाएगा, है ना। तो ये माइक्रो प्रोसेसर की किट या माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर उस वक्त हमारे को जरूरत पड़ेगी, समझा क्या? हेलो, shall I repeat again? Okay, so this is all over there in the architecture of 8085. I hope you have understood it, and
I am uploading these videos on YouTube also, so kindly go through those videos even if you don't understand. Right. So this is over there. So what we were talking about in this was for the input output oblique memory bar. The question was input output memory bar matlab kya? So this is a signal which is generated by a timing and control unit, and according to this status signal S0, S1 and input output memory bar, which I need to show you in the slides coming down. So we have seen this, right? Yes, in this, yes, this was the control signal that is being generated by the microprocessor. And if you are able to see, this is in the first block, there is input output memory bar, which implies that memory is active low, and S0 and S1 are there. That is mistake, S1 S2 लिखा है, S0 S1 है वो. और इसके बाद depending on this we are having this signal. So 0 0, if all the three are 0 0, which implies that it is halt. If it is 0 0 1, then it is to write the data in the memory. If it is 0 1 0, then it is the data is to be read from the memory. And if it is 1 0 1, then it is to write the data in the input output devices. If it is 1 1 0, then the data is to be read from the input output. read मतलब क्या, वहां से डेटा लाना है, रीड करना. और write मतलब क्या, वहां पर जाके लिखना है, वहां जाके स्टोर करना है. That is called as read and write. If it is 0 1 1, matlab it is for the memory, and if both are S1 and S0 are 1 1, then it is for to opcode fetch. मतलब हमारा जो इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने मेमोरी लोकेशन में लिखा है उसको फेच करके कहाँ लाना है, माइक्रो प्रोसेसर में लाना है. So this is opcode fetch. And if all the three signals are high, 1 1 1 है, मतलब क्या करना है, इंटरप्ट एक्नॉलेज का सिग्नल हमारे को भेजना है. So this is for the control signals that we have to study. और एक जो पार्ट था जिसको हम लोग बोलते हैं सीरियल इनपुट डेटा एंड सीरियल आउटपुट डेटा, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये जो ऊपर ब्लू कलर का दिया हुआ है ब्लॉक, ये है सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल, विच इंप्लाइज दैट इट इज गोइंग टू कंट्रोल द सीरियल इनपुट डेटा. यानी डेटा अगर सीरियली आ रहा है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो हम लोग सीरियली डेटा लेंगे, फिर उसको पैरेलल कन्वर्ट करेंगे और फिर हम लोग माइक्रो प्रोसेसर को देंगे. सिमिलरली अगर डेटा हमको आउटपुट करना है सीरियली, तो वो पैरेलल डेटा पहले यहाँ सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल में आएगा और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे सीरियल आउटपुट देने के लिए, बाहर देने के लिए. So this is for that. So serial input data and serial output data are the controls which are going to control the serial input data and serial output data. यानी अगर डेटा बाहर भेजना है तो भी, और अगर डेटा अंदर लेना है तब भी, तो ये दोनों सिग्नल्स वहां पर यूज करेंगे. So this is for all today. If you have any other queries, again you can ask me on this, or you can even chat on the chat box. So thank you very much for patience listening. Thank you. Good day. Okay. Bye. Take care. See you soon. See you tomorrow. Bye. Good day.